हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ तेज कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द सब्जेक्ट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग. And in today's session, we are going to talk about the zero order reaction, its kinetics, and we will also see that why the zero photosynthesis reaction is a zero order reaction. Okay, and how we can make sure that other reactions can also become zero order reaction, or in what circumstances they can behave like a zero order reaction. Okay, so myself, Ankush Gupta, helping and mentoring the chemical engineering aspirants for GATE and PSU's exams from last 13 plus years. Okay, here on Unacademy. So as before we move ahead, I would like to tell you there is one amazing offer going on for you and your friends. ठीक है, whoever wants to prepare for GATE exam and PSU's exams for 26, 27 और others. ठीक है, तो अनअकैडमी पे इस समय फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है, जिसमें 8,999 में उन्हें 9+1 मंथ का और 9,999 में 12+2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. दे जस्ट नीड टू यूज माई कोड ACE009 टू गेट द डिस्काउंट. ठीक है, आप बाकी कोड भी यूज कर सकते हो, बट मेरा कोड यूज करके बेनिफिट ये है कि आई विल गाइड यू पर्सनली वन ऑन वन. ओके, फॉर योर गेट एग्जाम, जिसमें हम टाइम टू टाइम स्ट्रेटजीज, प्रिपरेशन, सारी चीजें चेक करेंगे. ठीक है, वापस अब टॉपिक पर आते हैं. तो इन टुडेस सेशन वी विल बी observing these things. What is zero order reaction? What is pseudo order mechanism? Kinetics. Is photosynthesis actually a zero order reaction, or we just say that? Okay, some other examples and some age booster practice questions. ठीक है, तो from episode 2 I ask you some questions. ठीक है, तो पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, you are shown a multi-step energy diagram with two peaks, something like this. Okay. So here, what is true? Reaction is elementary? No. There are two intermediates? No. The reaction is non-elementary? Yes. Activation is energy same for both steps? No. Yes, two intermediates. Sorry. Two peaks means two intermediates are there, as you can see. ठीक है, नहीं वन ही होगा. सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, वन ही इंटरमीडिएट होगा. एक तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होता है, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स. दिस इज फॉर इंटरमीडिएट. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, फॉर द गिवन रिएक्शन A plus B gives C, experimentally determined rate law is KCA square. So which is the true? KCA square. Okay, this is the rate. So we can understand that in RDS must be something like this, where 2A is giving some intermediate. Okay, the reaction is elementary and bimolecular? No, we cannot say that, because for elementary reaction, stoichiometry of the reaction and apparent order of the components has to be same. तो A तो गलत हो गया. Reaction is elementary, ये भी गलत हो गया. Reaction is non elementary, ये correct है. ठीक है, and order of reaction is 2, तो molecularity is no. हम बात कर चुके हैं, order and molecularity are two different things. ठीक है, याद करो वो water filling tank का example analogy हमने discuss की थी. Next question, for the given mechanism A plus B, reversible reaction gives C fast step, C gives D slow step. तो rate law क्या होगा? KC, क्योंकि slow step will be my RDS. Correct. For the reaction 2NO plus O2 gives 2NO2, rate is given like this. What is the order and molecularity? So we can see order of reaction will be 2 plus 1 equal to 3. तो चारों में 3 है. ओके फाइन. एंड मॉलिकुलरिटी, अब यहाँ पे देखो, आप सभी ऑप्शन में मॉलिकुलरिटी मेंशन करना ही है, तो फिर मॉलिकुलरिटी हम आरडीएस की करते हैं. आरडीएस में आप समझ सकते हो, आरडीएस इसका क्या होगा? आरडीएस में एनओ के 2 और ओ के 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होंगे, तो मॉलिकुलरिटी भी 3 होगी. ठीक है, बट रिएक्शन क्या होगी? एलिमेंट्री? नो 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 नो, रिएक्शन विल बी नॉन एलिमेंट्री, क्योंकि हमें नहीं पता ना, प्रॉब्लम में गिवन ही नहीं है कि ये आरडीएस है या नहीं है, तो हम बी पे टिक करके आएंगे. ओके, ए को टिक मत कर देना गलती से भी. एलिमेंट्री सिर्फ तभी बोलेंगे जब गिवन होगा, ऐसे एलिमेंट्री नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं नॉन एलिमेंट्री में भी स्टोइकियोमेट्री और अपैरेंट ऑर्डर सेम सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. तो दिस इज द आंसर. अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? तो ऑल दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशंस, दैट इज, जो उनका रेट लॉ है वो कुछ आपका इस तरह से होता है. ठीक है, कंसंट्रेशन का टर्म आता ही नहीं है. तो यू कैन सी हियर, रेट विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं. अब इनकी काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप कर्व ड्रॉ करते हो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक है, सिंस आर इक्वल टू के है, तो वो जो कर्व है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सी है, वो आपका कुछ इस तरह से आएगा. A horizontal line parallel to x-axis, where this r is equal to k at constant temperature. ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो k चेंज होगा तो r भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पे हम CA के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वेरिएशन, सो ऑब्वियसली ऑल अदर पैरामीटर्स इंक्लूडिंग टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट. नाउ काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यू नो दैट, वी ऑलरेडी नो दैट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, rate of reaction can be defined as minus dCA by dt. Okay, and from power law, you guys know that rate of reaction will be equal to k. So if you compare these two, so you will get minus dCA upon dt is equal to k. अब यहाँ पे आप
चेक कर सकते हो। If you want to install this, so minus dCA is equal to K into dt. Now here, you know the limits. At reaction time t equal to 0, T is the reaction time. Concentration of A will be in Ca naught, initial concentration. At any reaction time t, it will be Ca. So when you solve this, you will get Ca naught minus Ca is equal to Kt. So this is your kinetic equation in terms of concentration for zeroth order reaction in CVRS. और वहीं से अगर आपको conversion की terms में देखना है तो we know that for CVRS, constant volume reaction system, Ca can be written as Ca naught into 1 minus Xn. So your kinetic equation Ca naught minus Ca equal to Kt, when you put the value of Ca here, can also be written as Ca naught into Xa equal to Kt. ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, here it is obvious. अगर आपको इसका प्लॉट बनाना है, ये जो इक्वेशंस है इन्हें हम बोलते हैं काइनेटिक इक्वेशंस, ठीक है, और इन इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करते हो तो उन्हें बोलते हैं हम काइनेटिक कर्व्स, या फिर आप बोल सकते हो लेवेन-स्पाइल कर्व्स, ठीक है, वो कुछ आपके इस तरह से होंगे जब आप कंसंट्रेशन और कन्वर्जन का देखोगे Ca वर्सेस T के लिए, तो यू कैन सी एट एनी टाइम t0 it is equal to Ca naught, and as you can see it is y equal to mx plus c, it will decrease linearly, okay, and the moment it is 0, Ca equal to 0, what is the time at this value when Ca is 0? Here you can see time will be Ca naught upon K, करेक्ट। और ऐसे ही आप कन्वर्जन वर्सेस टाइम का भी ड्रॉ कर सकते हो, वो आपका लीनियर इंक्रीज करेगा लीनियरली, जिसका स्लोप क्या होगा, यू कैन सी हियर द स्लोप इज माइनस के, एंड हियर यू कैन सी सी ए नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी, तो सी ए इक्वल टू सी ए नॉट माइनस के टी, तो ये हो गया वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्लोप इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे आप देखो वाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स इज इक्वल टू के अपॉन सी ए नॉट इंटू टी, तो यहाँ स्लोप हो जाएगा के बाय सी ए नॉट, करेक्ट। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो फॉर 100% कन्वर्जन टी विल बी इक्वल टू सी ए नॉट अपॉन के, ठीक है, आपकी इक्वेशन यही है ना, सी ए नॉट इंटू एक्स इक्वल टू के टी, तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्स इक्वल टू 1 रखने पे टी क्या आ जाएगा, सी ए नॉट अपॉन के, और यहाँ पे थियोरेटिकली हम बात कर रहे हैं सी ए नॉट इज अ फाइनाइट वैल्यू, के इज ऑल्सो अ फाइनाइट वैल्यू, यू नो दैट के कांट बी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये आपको पता ही है, तो जब ये दोनों फाइनाइट है इसका मतलब टी भी एक फाइनाइट वैल्यू होगा, मतलब हम एक डेफिनेट टाइम में 100% कन्वर्जन अचीव कर सकते हैं थियोरेटिकली, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में पॉसिबल है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ थियोरेटिकली x equal to 1 can be obtained in finite time, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, अगर आप देखोगे फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, k अपॉन सी ए नॉट इंटू टी, ठीक है। इस लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्या ये कि फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन in CVRS mode, XA is inversely proportional to, sorry, सी ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हमें क्या समझ सकते हैं, देखो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास किसी रिएक्टर में सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यू नो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब के भी कांस्टेंट हुआ, और मैं एक गिवन टाइम टी के लिए बात कर रहा हूँ, एक फिक्स टाइम टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझना, अगर मेरा सी ए नॉट का वैल्यू सपोज 10 है और लेट से मेरा कन्वर्जन आता है 70%, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सी ए नॉट को इंक्रीज कर देता हूँ तो जो मेरा कन्वर्जन है वो लेस देन 70% हो जाएगा फॉर द सेम टाइम एंड टेम्परेचर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर फॉर द सेम गिवन टेम्परेचर एंड गिवन टाइम एक्सए विल लेस डिक्रीज, एंड सिमिलरली इफ यू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स से फ्रॉम 10 to 1, then your conversion will increase, समझ रहे हो, तो दैट्स हाउ पीपल डू द थिंग्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दे कैन ऑप्टिमाइज द कन्वर्जन एंड एवरीथिंग, ठीक है, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, तो दिस इज समथिंग अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अब आगे बढ़ें और हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है, तो उससे पहले एक आइडिया है स्यूडो ऑर्डर मैकेनिज्म, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। स्यूडो वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है फॉल्स, फेक,
ठीक है, तो सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी, और इसका रेट इक्वेशन सपोज ऐसा कुछ दिया है के सी ए स्क्वायर सी बी। ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सिंपली यू कैन से सर क्या पूछ रहे हो, बच्चों वाली बात है, 3 है। ठीक है, मैं कहूंगा अच्छा ओके, अब एक बात बताओ, इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो मैंने इंक्रीज कर दिया, एक्सेस में कर दिया विद रेस्पेक्ट टू बी, तब क्या होगा ऑर्डर? आप कहोगे सर तब भी 3 होगा, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, थियोरेटिकली 3 होगा बट प्रैक्टिकली 3 नहीं होगा। आप बोलोगे सर मतलब क्या हुआ? देन आई विल से ये मतलब हुआ, देखो, इफ सी ए नॉट इज फार फार ग्रेटर देन सी बी नॉट, इसका मतलब क्या है? आइडिया इज सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी, ठीक है, मैंने इनिशियली सी ए नॉट की वैल्यू ले ली 100 और सपोज सी बी नॉट की वैल्यू ले ली मैंने 5, थिंक लाइक दिस। ओके, तो आई हैव 100 moles of A, 5 moles of B and 0 moles of C initially. Now at any time t you can see 1 mole B will react with 1 mole A, तो all the 5 B will react with 5 of A, तो B कितना बचा 0, सपोज पूरा B खत्म हो गया, A कितना बचेगा 95, C कितना बना 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी भी A का जो अमाउंट है वो कितना है 95 है, विच इज ऑलमोस्ट सेम एज 100, और यू कैन से सी ए नॉट। यस और नो? अगर आप कंपैरिजन करो तो 0 के रेस्पेक्ट में 5 के रेस्पेक्ट में 95 इज ऑलमोस्ट सेम एज 100, अ लार्ज वैल्यूज, करेक्ट? सो दैट इज द होल आइडिया, दैट मीन्स हियर सी ए विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सी ए नॉट। अगर ऐसा सीन बन गया तब तो आप देखो रेट क्या होगा, रेट इज के सी ए की जगह हो जाएगा सी ए नॉट सी बी। अब आपको होता है के इज कांस्टेंट, सी ए नॉट इज आल्सो कांस्टेंट, तो वी कैन रिप्लेस देम बाय अ न्यू कांस्टेंट, लेट्स से के डैश, तो ये आ गया के डैश सी बी। अब यहाँ देखो ऑर्डर क्या हो गया, हियर ऑर्डर इज 1, तो इसे मैं बोलूंगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब theoretically the order of reaction is 3, but practically reaction is following first order kinetics, lower order kinetics, समझ रहे हो? वाओ! अब आप बोलोगे सर अगर सी बी नॉट ज्यादा हुआ तो मैं कहूंगा सर कोई दिक्कत नहीं है, देखो, इफ सी बी नॉट इज फार फार ग्रेटर देन सी ए नॉट, ठीक है, यू नो रेट वाज के सी ए स्क्वायर सी बी, तो हियर यू नो इन दिस केस सी बी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सी बी नॉट। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के सी ए स्क्वायर सी बी नॉट, and since k is constant C b naught is constant, so you can replace them by a new constant, let's say k dash C a square। अब ये बन गया मेरा pseudo second order reaction। okay, I hope it is clear। ठीक है, तो दिस इज द pseudo order mechanism। अब इसमें अगर आप कहो, इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई अगर सिंगल रिएक्टेंट है तब, मोर देन वन रिएक्टेंट है तो आप समझ सकते हो। अगर सिंगल रिएक्टेंट है लाइक समथिंग लाइक दिस a gives p, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, सिंपल है। सपोज अगर कोई रिएक्शन है a gives p, तो यहाँ पे रेट क्या होगा, सपोज k C a पावर n, करेक्ट? नाउ हियर थिंक लाइक दिस, ठीक है, थिंक लाइक दिस, सपोज ये मेरा ओशन है, दिस इज द बीच, okay, now suppose here if I connect a pump and I am withdrawing a water, ठीक है, मैं वाटर विड्रॉ कर रहा हूँ। now tell me if I withdraw the water, अगर मैं यहाँ ओशियन के बैंक से from this region if I withdraw the water, ठीक है, क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज ये बकेट है, दिस इज अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें वाटर फिल है। अब सपोज फ्रॉम मग और समथिंग और अ जार if I take out the water, what will happen? What will happen? The level of water will decrease, ठीक है, level of water will decrease, you can see a gap is being created, correct? So similarly here in ocean, if I connect a pump or if I use bucket to withdraw the water, so you can understand, ठीक है, understand, visualize, logically a gap should create, a gap should create there, ठीक है, अगर आपने पानी लिया तो उतना गैप क्रिएट होना चाहिए ना। इफ आप अगर आप 10 लीटर पानी विड्रॉ कर रहे हो तो 10 लीटर पानी का एक गैप क्रिएट होना चाहिए, एम्प्टी रीजन क्रिएट होना चाहिए, करेक्ट, लॉजिकली। बट क्या होता है ऐसा, इन रियलिटी क्या है ऐसा होता है, यू विल ऑब्वियसली यू नो दैट इट विल नॉट हैपन, ओके, बिकॉज वॉट एवर अमाउंट ऑफ वाटर वी विल विड्रॉ, द सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल मेक अप देयर, ठीक है, इट विल बी सप्लाइड बाय द ओशन साइमल्टेनियसली, प्रैक्टिकली अ गैप विल नेवर बी क्रिएटेड। आपको वहां पता चलेगा कि कोई गैप कभी क्रिएट ही नहीं हुआ, और अगर कोई गैप क्रिएट ही नहीं हुआ मतलब इस सिस्टम में ए का जो कंसंट्रेशन है सी ए नेवर डिक्रीजिंग, ठीक है, नेवर डिक्रीजेस। मैं ए कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा हूँ विद वेरी हाई रेट, तो जितना भी ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुआ साइमल्टेनियसली उतना मैंने पहुंचा दिया, तो अ गैप इज नेवर क्रिएटेड, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द रिएक्टर एट एनी टाइम टी विल बी सेम एज इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए
उतना कंसंट्रेशन रिड्यूस होना चाहिए, बट मैं पीछे से ऑलरेडी बहुत सारी कंसंट्रेशन भेज रहा हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भेज रहा हूँ, तो वो गैप कभी क्रिएट ही नहीं होगा, तो सी ए विल ऑलमोस्ट बी सेम एज सी ए नॉट, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो यू कैन अंडरस्टैंड आर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू के सी ए नॉट पावर एन, विच इज अ कांस्टेंट, तो यू कैन सी इट इज स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आइडिया ये है, इंटरव्यू में पूछा था मेरा जो बाग इंटरव्यू था, मुझसे ये डिस्कशन हुआ था इन सीआरई, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, देन दे आस्क मी राइट डाउन सम वन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट डाउन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आई रोट, then for second order reaction they ask me, can we reduce the order of this reaction? Okay, what will you say for a second order reaction? Suppose ऐसा कुछ है, ठीक है, like this is third order reaction, can we reduce the order? So answer is correct answer. Theoretically we cannot reduce the order of reaction, but we can change the operating conditions in such a manner that practically reaction follows lower order kinetics. Like here, more than one reactants means first order kinetics it is following, एंड इन केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इट इज फॉलोइंग, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, CO2 H2O गिव्स ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। इसे अगर हम प्रॉपर्ली देखें तो 6 CO2 रिएक्ट्स विद 6 H2O मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्लस 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स राइट इट लाइक दिस, ठीक है। CO2 को मैंने A बोल दिया, H2O को B बोल दिया फॉर कन्वीनियंस पर्पस, नथिंग एल्स। दिस इज द रिएक्शन, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, single step, multiple step. But if you have to write, so you know, in general, we can write rate of reaction as K, concentration of CO2 means Ca power alpha, concentration of H2O means B power beta. Correct? Where order will be alpha plus beta. समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। Now you know that in atmosphere क्या हो रहा है एटमोस्फेयर में? सपोज ये मेरा कोई ट्री है, ठीक है। So many CO2 molecules are there in the atmosphere. Similarly, moisture is also there in air or in the ground. So in the presence of sunlight, you know, reaction will occur. Now tell me here, do you think the concentration of CO2 will decrease in atmosphere? CO2 molecules will react with H2O in photosynthesis reaction. So logically, a gap should create. But you know, surrounding atmosphere, such a large amount of air is there, such a large amount of CO2 is there, such a large amount of H2O is there. So a gap of CO2 and H2O will never create because simultaneously CO2 and H2O will be supplied by the atmosphere. जितना CO2 H2O रिएक्शन में गया, उतना ही CO2 H2O तुरंत साइमल्टेनियसली इसी समय सप्लाई हो जाएगा एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है। तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ CO2 विल ऑलवेज remain same as initial concentration and concentration of H2O will also remain same as initial concentration, ठीक है। तो यू कैन सी अगर कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही तो रेट क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ दीज कंसंट्रेशंस, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, H2O की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तभी तो रेट चेंज होता है, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रही, तो क्या रेट कंसंट्रेशन का फंक्शन है? नहीं है, ठीक है। और अगर रेट कंसंट्रेशन का फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यही हमने देखा था। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जहां पे रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यही हम इन जनरल लिखते हैं कि ये हमारी स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। ये ट्रू जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इट शुड बी क्लियर टू यू, ओके। मैं लिख भी देता हूं, photosynthesis reaction is pseudo zero order reaction, not the true zero order reaction, ठीक है। Why? Because you know photosynthesis reaction जो हमने ये लिखा है ये एक simplified version है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। क्वाइट कॉम्प्लेक्स मींस आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। पहले जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स में, वहां पे हमारे फोटॉन्स फॉल करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वो रिलीज होते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं, फिर वाटर स्प्लिट होने से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है दैट इज माय बाई प्रोडक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो उन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कवर अप करते हैं। फिर वहां पे एटीपी फॉर्म होता है जो कन्वर्ट होता है एडीपी में, और एडीपी के बाद वहां पे एनएडीपी और ये सारी चीजें बनती है, यू नो ऑल दैट स्टफ, ठीक है। वो मैंने एक टेबल भी लगा दी है ताकि आपको आइडिया रहे द कंपैरिजन बिटवीन सिंप्लीफाइड वर्जन एंड एक्चुअल मैकेनिज्म। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है जो मैंने आपको बताया, और ये एक्चुअल मैकेनिज्म में किस तरह से चीजें होती हैं वो आप सब लोग देख सकते हो, आपका मन है तो, ठीक है। बाकी अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन है, बेसिक एज बूस्टर्स, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन दिस फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है।
इन्हें आप सॉल्व करना और कमेंट में इनका आंसर ज़रूर बताना, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बीटेक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका सेमेस्टर में सीआरई है ताकि उन्हें हेल्प मिले। ओके, सेकंड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, इनका आंसर देना, बाकी इन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँगा डेफिनिटली, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल काइनेटिक्स का हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ आप देखो हाफ लाइफ से रिलेटेड हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये डिजाइनिंग ऑफ रिएक्टर का है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ बैच रिएक्टर कैलकुलेट करना है। सोचो सोचा है ऐसा? ध्यान कभी वॉल्यूम ऑफ बैच रिएक्टर कैलकुलेट करना है। एमएफआर, पीएफआर का तो करते हैं, बैच रिएक्टर का कैसे करेंगे? एंड फोर्थ क्वेश्चन, अगर मल्टीपल रिएक्शंस हो रही हैं लाइक दिस, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का, सारी चीजें। तो वो सिंपल काइनेटिक्स का है, पर ट्राई करना, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक यू। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या लेके आ रहा हूँ आपके लिए? नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए ला रहा हूँ सरप्राइज, आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। नेक्स्ट एपिसोड इज ऑल अबाउट द रिएक्शन काइनेटिक्स, कन्वर्जन। आपके जो भ्रम है वो दूर हो जाएंगे। जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता, इसी तरह मैं आपको ये बताऊंगा इस एपिसोड में, किसी भी रिएक्शन में हम 100% कन्वर्जन अचीव नहीं कर सकते। इवन भगवान भी आ जाए ना, वो नहीं कर सकते। अगर आप गॉड पार्टिकल की बात करते हो, आप गॉड रिएक्टर ले आओ, उसमें 100% कन्वर्जन नहीं होगा। व्हाई? आई विल टेल यू। अभी मैंने लिखा जीरो थर्ड रिएक्शन में 100% कन्वर्जन, मैं आपको बताऊंगा। थियोरेटिकली वो भी नहीं होता। ऐसा बस हम बोल देते हैं लेमन टर्म्स में, बट एक्चुअली अगर आप जाओगे नहीं होता जीरोथ में भी। क्यों? आई विल टेल यू, ठीक है? भाई अब मैंने बोला आपको इतना बड़ा बड़ा 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो कुछ तो नई चीज आपको दूंगा ना, ऐसी चीज जो बुक्स में ना हो, जो आराम से आपको ना मिले कहीं, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना, सेशन को लाइक करना। और अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके जो फ्रेंड्स गेट और पीएसयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए अभी ऑन अकेडमी ने अमेजिंग ऑफर निकाला है 60% ऑफ का। दे जस्ट नीड टू यूज माय एजुकेटर कोड EC009 एंड दे विल गेट ऑफर प्लस चांस, दे विल बी एलिजिबल टू गेट माय पर्सनल गाइडेंस। मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? और ऐसे ही अगर आपको और अमेजिंग लेवल पे चीजें समझनी है, डिटेल में समझनी है, तो अन अकेडमी का कोर्स लीजिए, आइए और मैं आपको पूरा डिटेल कोर्स इससे भी बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन सायोनारा।